نہیں آج تو میں نے ابھی ہے ان کو بھی میسج کیا ہے انجل بھائی، آج تو میں نے ابھی آپ کو میسج بھی کیا ہے، وہ آپ پڑھیں کہ آج کیسر بھائی نے یعنی جو خلافت اور جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو بڑی زبردست گفتگو ہے، اور میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی ملحد بھی اختلاف کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ملحدین کو یہ خلافت سے ہی خوف رہتا ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں کیا، وہ جو ایک منظر کشی ان کے ذہنوں میں ہے کہ وہ تلواریں چلیں گی، گردنیں کٹیں گی، بھائی وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ بہت آج گفتگو اچھی ہوئی ہے، اور آپ نے جو ہجرت کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ یہ ہجرت کی ضرورت ہے کہ عقل و شعور کی طرف آپ ہجرت کریں، یعنی جو آپ کے عصر حاضر میں جو علوم ہے اس کی طرف ہجرت کریں۔ اب دیکھیں نا کیسر بھائی، ہمارے یہاں روایات میں بھی یہ ملتا ہے امام علی کے حوالے سے کہ مومن وہ ہے جس کو اپنے عہد کی بصیرت ہو۔ تو آپ جس طرح سے ہوں بصیرت بیان کر رہے ہیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، اور ترکی کے حوالے سے آپ نے بات کی، پھر ایران کے حوالے سے، اور پھر خود پاکستان میں، تو یہ بصیرت ہر مومن کو رکھنا چاہیے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے، تو یہ تو خوشائن بات ہے نا۔ اب دیکھیں، میں ملحدین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا کسی وجوہات کو، تو آپ اگر اس طرف چلے گئے تو جو ریشنلٹی کا اور ایک جو اخلاقیات کا دامن ہے نا وہ انسان تھامے رکھے، اور عقل و شعور پھر وہاں پہ بھی لے کے آئے، کیونکہ میں نے اس کو بڑا ڈیپلی جا کے اسٹڈی کیا ہے کہ اگر آپ ایوولوشن کے تھرو آئیں گے نا، یعنی تھیوری آف ایوولوشن کو بنیاد بنا کے اگر آپ اخلاقیات کی بات کریں گے، تو پھر بھی آپ اٹل اخلاقیات وہاں سے ثابت کر ہی نہیں سکتے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی توجہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلی میں اور ایک عاقل انسان میں تمیز کر سکیں ایوولوشن کو بنیاد بنا کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے اس حوالے سے۔ تو اس پہ تو میری ان لوگوں سے کافی ڈیپتھ میں ڈسکشن ہو چکی ہے، اور میں نے 3-4 اسپیسز کی تھی بڑی، لیکن بڑے بڑے جو ملحدین ہیں جو ٹویٹر پہ ہیں وہ آئے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ میں مطمئن نہیں کر کے گئے تھے، تو اصل میں ان کو وہ کریں گے نہیں، وہ آپ کی حسرت ہی رہ جائے گی کیونکہ ایتھیزم از کمپلیٹلی ڈیوائڈ آف لاجک اینڈ سم تھنگ۔ دیکھیں میری کوئی 50 گھنٹے سے زیادہ کی اسٹریم رہی ہے، کوئی کبھی 5 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے، اس طرح سے کر کے، جس کا نام ہی تھا کنونس می آن ایتھیزم۔ کیا بھائی مجھے ایتھیزم پہ آپ کنونس کریں؟ کوئی تکفیر نہیں، تکفیر تو خیر اس میں اپلائی نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی اسلام سے باہر ہوتے ہیں، ان کوئی گالی نہیں، کوئی جذباتیت نہیں، کچھ بھی نہیں، لاجیکل باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو پاکستانی ایتھیسٹ لانے شروع کیے، اور انڈیا کے بعد میں کرتے کرتے یو کے، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، پھر انہوں نے آنے بند کر دیا۔ بہت سے بچے الحمدللہ مجھے کبھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، میں کسی کا بھی شکر کرنے کا میں اہل نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پہ خاص کی ہے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں کہ میں یہ بات میں رپیٹ بھی کروں، کہ اللہ نے کتنے ہی لوگ ہیں وہ مسلمان بچے جو دین چھوڑ گئے تھے، مجھے یہ عزت بخشی کہ وہ میرے ہاتھ پہ واپس دائرہ اسلام میں آئے، یہی ڈبیٹ سن کے، یہی باتیں سن کے کہ ہم جس ایتھیزم کے اتنا اس کو ہم نے پھیلایا ہوا ہے، اس کے دامن میں تو سوائے بدتمیزی، irrationality، چانس، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیر از نتھنگ ٹو پروو، دیر از نتھنگ ایون ٹو ڈیفائن۔ تو لوگ واپس آئے کہ ہم یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بڑی پکی بات ہے۔ آج بھی جو ہمارے بھائی نہیں آ رہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے ایتھیزم سے ان پہ بغیر بدتمیزی کی ہے، صرف اخلاقی طور پہ 5-6 باتیں پوچھنی ہے ایتھیزم کی، اور ایتھیزم کی ساری کلی کھل جائے گی، یعنی ریئلائز دیٹ، لیکن یہ ڈوگما ہے، دے نو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ، بٹ ڈسپائٹ دیٹ یہ بس ہمارا ڈوگما ٹھیک ہے۔ اینی وے، یہ تو سلسلہ سے چلتا رہے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ون ون ہی رکھی ہے، یہ بحث کریں بہت اچھا لگتا ہے، نہ کریں تو پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے چھپانے کو، کیوں یہ بھاگتے ہیں، کیوں یہ بات نہیں کرتے۔ I'm very sorry، میرے لہجے میں کبھی کوئی تلخی آ جاتی ہے ان لوگوں کے بات کرتے ہوئے، لیکن honestly I don't apologize for that anymore۔ ایک زمانہ تھا میں کہتا تھا، لیکن ان کے اندر کی ہپوکریسی دیکھ کے، ان کے اندر کرنے، یعنی یہ وہ طبقہ ہے، میں آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، 1-2 بھائی اور ویٹ کر رہے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی امریکہ، یو کے، کبھی ان کے کوئی ایسے مظالم کی بات کر دیں تو ان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ان کو ذاتی طور پہ کسی نے ان کو کچھ کہہ دیا ہے، اور آگے سے کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ اگر ڈیٹا شیئر کریں انہی ممالک کا آفیشیل، تو کہتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے ملک ہیں، کم سے کم ڈیٹا تو ان کے پاس ہے، وہ تو اڈا پلا ہو جائے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ انہوں نے مار دیے، تو یہ کہہ رہے ہیں تعریف کرو کہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ انہوں نے اتنے لاکھ لوگ مار دیے۔ I mean, this is the level of your logic۔ تعریف کرو ان کی کہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، مسلمان تو لکھتے بھی نہیں ہیں، ماشاء اللہ۔
Anyway, Ali bhai, इजाजत चाहूंगा मैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड. लेट मी मूव टू आरिफ साहब हैं और उनके बाद मीम उनकी तरफ में आऊंगा. आरिफ, वेलकम ऑन बोर्ड. देखिएगा आप म्यूट तो नहीं है, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं. साहब वालेकुम अस्सलाम जनाब. बहुत बहुत शुक्रिया माइक देने के लिए. मैं गायब आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे भी, और आपके काम जो भी हैं उसके ऊपर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा, कि आपने बात करी थी वोट फॉर वोट की. तो वोट के हिसाब से आपने एक बात बताई कि फैसलाबाद पे आपने जो है ना 20 मस्जिदों को या कुछ मस्जिदों को इंगेज किया. तो वो थोड़ा तरीकेकार बताएं कि आपने मस्जिदों को कैसे इंगेज किया और वो क्या रोड मैप था. और दूसरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर सीरीज अगर आप बना सकते हैं, जैसे सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, इसी तरीके के जितने भी इज्म है. एक जैसे मुफ्ती यासिर नदीम मस्जिदी की एक लेक्चर सीरीज है एथियज्म एक्सपोज्ड, तो उस तरीके कोई एक लेक्चर सीरीज आप बना सकते हो तो काइंडली. जी जरूर, इंशाल्लाह वो बिल्कुल मेरे प्लान में है. अब मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का भी मैंने शुरू कर दिया है दौरा, वहाँ पे भी बातचीत होती है लोगों से. कंटेंट यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीम, ये सारी चलती हैं. अभी मैं काम कर रहा हूँ इवोल्यूशन पे. इवोल्यूशन जब ये सीरीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन की, और उसके बाद फिर मैं कोई पॉडकास्ट का मैं सोच रहा हूँ कि ये जितने भी इज़म्स हैं इनके पीछे जो अंडरपिनिंग फिलॉसफीज हैं, जैसे कि नाइलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, पैसिमिज्म है एंड सो फोर्थ, इन पे काम किया जाए. क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल्स आ गए, जो इज़म्स डेवलप हुए, ये तो उनका प्रोडक्ट है, लेकिन जो उसके पीछे एक अंडरपिनिंग फिलॉसफी है, जब आप उसकी इनकोहेरेंस और उसके फ्लोज को सामने रखेंगे तो ये चीज़ें फिर खुद ब खुद मैटर करना बंद कर देंगी. क्योंकि तो अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई ना, जैसे पाकिस्तान में आगे मैं कह रहा था कि कोई अकल वाला आदमी सोशलिस्ट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद हमारे बच्चियां सोशलिस्ट हो जाते हैं. तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनमें अकल नहीं है. वो इसलिए हो जाते हैं कि उनको सोशलिज्म इतना अच्छा करके दिखाया जाता है, इतना अच्छा करके दिखाया जाता है कि बल्ले बल्ले हो जाती है कि जनाब सोशलिज्म ही क्या चीज़ है. तो इनको भी इन फिलॉसफीज की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं. देन इट्स आवर जॉब कि उनमें जितना भी है उसको अच्छा तरह से ऑपरेशन करके विद रेफरेंसेस एकेडमिक लेवल पे वो सामने रखूँ. तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मेरे प्लान में है. कोशिश करूंगा कि अगले कुछ महीने में ये सारा कुछ हो जाए. आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए. थैंक यू सो वेरी मच इंडीड. अच्छा राजा साहब, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही दिया कि वो जो लोगों को एंगेज करने वाली जो बात आपने बताई थी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. हाँ जी, हमारे पास हमारी जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है उसकी कुछ 7 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, एक इदारा फैसलाबाद में उस वक्त था, आई थिंक वो अब डिसबैंड हो गया है. उनके साथ कोलैबोरेशन थी और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी. फैसलाबाद में जो हमारा इवेंट हुआ था वो भी उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था. वो लीफलेट्स छपवा के तो मस्जिदों में जाके, तो हर यानी कि मस्जिदों में जाके एक्सप्लेन करके कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये किस तरह से गैर शरई है. तो हमने फिर ये इंगेज करके उनको 2-3 इदारे थे, एक इदारे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मस्जिदों को इंगेज किया था. तो आइडिया ये था कि हम उनको फिर हर इलाके में जो भी वहाँ पे MNA है, MP है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कि उस इलाके की सारी मस्जिदें जुमा पढ़ने के बाद ग्रुप की सूरत में हम वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं. उसके बाद सोशल मीडिया पे हम एक इवेंट क्रिएट करें फेसबुक पे, और उस इवेंट में सारे जाके फिर क्या कहते हैं चेक इन करें. चेक इन का फ़ायदा ये है कि एक आदमी चेक इन करता है तो उसके फिर जितने भी कॉन्टैक्ट्स में लोग होते हैं, वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, उन सब तक मैसेज चला जाता है. तो उसको फिर हमने इस तरह से सिस्टमेटिकली स्प्रेड करने की, लेकिन वो बैकफुट पे चलेगी, हमने भी वो करने की फिर जरूरत महसूस नहीं समझी, क्योंकि जो हम करना चाह रहे थे वो तो हो रहा था. तो थ्रेट का वैसे भी बेहतरीन असूल ये है कि ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इट. तो फिर वो हमने उसको फॉलो अप नहीं किया, बट सर्टनली इट वाज द इंटेंशन कि हम इसको इस तरह से लेके चलें. इस तरह से हमने किया था जी. क्योंकि ना इस तरीके की मतलब एक मूवमेंट चल रही है काफी अरसे से, तंजीम इस्लामी, डॉक्टर इसरार अहमद ने जो शुरू की थी. जी जी. तो वो मतलब चला रहे, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है. मैं भी उसमें हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कोई रोड मैप नहीं है. जैसे आपने अभी बातें बताई मुझे काफी क्लिक हुई, तो इसलिए मैंने पता किया. थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया.
प्लेजर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब, तशरीफ लाए. होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आपसे बात होगी. अच्छा, मीम हमारे साथ थे पर मीम हमारे पास साथ नहीं है, उनकी जगह मिस्टर साइलेंट हमारे पास है. आई डोंट नो मीम क्या हुआ, आपने क्यों अपना माइंड चेंज कर दिया, बट शुड यू विश टू कम बैक ऑन, आई विल सर्टनली टेक यू ऑन बोर्ड. मिस्टर साइलेंट, माइक मैंने आपको दिया है, वेलकम ऑन बोर्ड. क्या कहना चाहेंगे या कहना चाहेंगे या शुड से मिस्टर लिखा हुआ है तो मिस्टर साइलेंट अनम्यूट कीजिएगा उसको. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकल्लाह कैसर भाई, लास्ट टाइम आपसे यूट्यूब पर बात हुई थी. कैसर भाई, पहले तो अल्लाह आपके उम्रा को कबूल करे और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. जी कैसर भाई, हिंदुस्तान में इस वक्त भगवान लॉ ट्रैक चल रहा है, तो बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो एज अ इंडियन मुस्लिम अपने को हिजाबी और दीनदार और अपने आप को नेकबख्त समझते हैं, लेकिन लिबरलिज्म को और सेकुलरिज्म को वो एक पॉइजन की तरह शुगर कोटेड करके मुसलमानों में डिलीवर कर रहे हैं. तो यहाँ पर वफा भाई भी बैठे हैं, आप प्लीज काइंडली उनको भी अगर माइक दे दे तो मेरे बात वो बात करेंगे, या मीम भाई हैं उनकी बात करने. हिंदुस्तान में आपके जैसा मुअत्तबिल नहीं है, यानी आपकी जैसी कोई दूसरी पीस हमारे पास हिंदुस्तान में नहीं है. बस मुफ्ती यासिर साहब, नदीम अलबज्ती साहब माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे. काइंडली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एज अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्लीज आप या तो एक स्पेस स्पेशली इंडियंस के लिए था करके, जो हालात जो चल रहे हैं और मुसलमान को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है और हर आदमी इस चीज की वजह से परेशान है. तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अगर कुछ ऐसा निजाम हो जाए तो. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इस पे मैं माफी चाहूंगा. आई थिंक जो ज्यादा हमारे पाकिस्तान में मसाइल बहुत मुख्तलिफ तरह के हैं. मैं नहीं चाहता कि इंडिया के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुलेआम कहता हूं कि इंडिया एक फेक कंट्री है. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड इवन फॉर अ सेकंड. तो वो उनसे के बारे में मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो आम आवाम है उनके इस्तेहसाल को भी मैं जानता हूं. मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, वी अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन इसके बावजूद मैं इस पे कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मैं वो चीजें फेस नहीं कर रहा, भुगत नहीं रहा. तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसी गलत बात कह दूं जिस पे कोई इंसान अमल करके, तो क्योंकि वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ही होगा, भुगतना उसमें है. तो इसलिए मुफ्ती यासिर साहब की जो राय है इस पे वो बड़ी साइब है, वो बहुत ही आला मेयार की है. मेरे ख्याल में आप उसको फॉलो करें. मैं कुछ हमारे भाई इंडिया से कभी कभी जज्बाती होकर कह देते हैं कि भाई हम अब ये कर देंगे और वो कर देंगे. इस चीज़ के मैं हक में नहीं हूँ. आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपका मुआहदा है वहाँ पे, और मुसलमानों को हुक्म है कि अपने अहदों को पूरा करो. आपका अहद है वहाँ पे. जो लॉ है इंडिया का वो बुरा नहीं है मुसलमानों के हक में. हाँ, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बुरी है. श्योर, मुसलमानों को क्लियरली बायस्ड है उनके खिलाफ, अदालतें उनके खिलाफ है, थाना उनके खिलाफ है, लेकिन उसकी स्ट्रगल जो है वो डेमोक्रेटिकली इंडिया के अंदर अगर की जाए तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर है. मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से, क्योंकि देखें वहां पे जो RSS है या बाकी इस तरह की जितनी भी जो VHP और नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके लिए आइडियल ये है कि वो प्रोवोकेशन करें और मुसलमान प्रोवोक होकर रिस्पॉन्ड करें, कि उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए. माइंड यू कि जो जेनोसाइड के माहिरीन हैं उन्होंने 10 स्टेजेस आइडेंटिफाई किए हैं कि जेनोसाइड अचानक नहीं होता कि उठ के आप लोगों को मारना शुरू कर देते हैं. उसकी 10 स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस यानी कि उसकी हैं, और 10वीं स्टेज जेनोसाइड की है. वो 9 स्टेजेस में है जहन साजी होती है, मैस मीडिया कैंपेन होती है, दिस तरह एक लंबा थोड़ा प्रोसेस करके. और जो जेनोसाइड वॉच है उसके मुताबिक इंडिया ऑलरेडी 8 स्टेप्स उसके कर चुका है. सिर्फ एक स्टेप है, उसके बाद आगे जेनोसाइड है. वो रुक सकता है, वो रुक सकता है इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज करके. हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया के लोग इंडिया में कर सकते हैं,
जो मुस्लिम डियास्पोरा है, पाकिस्तान इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो कर सकते हैं, और अच्छे लोग इवन नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो भी कर रहे हैं. सॉरी, बात करते करते पीटर फ्रेडरिच आई थिंक उनका पूरा नाम है, वो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं. आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि दुनिया के ऐवानों तक ये बात जाए. लेकिन अगर प्रवोक हो के मुसलमानों ने खुदा न खासा कोई ऐसी हरकत कर दी तो बहुत सी फिर जस्टिफिकेशन मिल जाएगी उनको, तो उसके मैं हक में नहीं हूँ. मेरा ख्याल है कि पीसफुल इस चीज को रिजोल्व किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई विल ऑलवेज hope for, and that is certainly I would advocate for. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए मेरे साथ. अच्छा, आपको इस ये स्पेसेस में हमेशा ही कोई ना कोई ग्लिच होती है. सो नाउ वी हैव अनदर ग्लिच. ये बार बार जारिश को मैंने को होस्ट की ऑफर की थी, उसके बाद वो गायब हो गई है, लेकिन बार बार उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. वेयर आई कैन नॉट इवन सी हर. अगर वो है यहाँ पे तो अगर वो मुझे मैसेज भेज दें तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई यहाँ पे हैं. एनीवे, मैंने वफा साइरस, आपको मैंने माइक दिया है. वेलकम ऑन बोर्ड. व्हाट डू यू हैव टू से सर? जी अस्सलाम वालेकुम. कैदर भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है जी बिल्कुल. जी कैदर भाई, मैं इंडिया से हूँ, और हमारी जो साइलेंट भाई कह रहे थे ना, मेन प्रॉब्लम हमारे सामने जो फेस हो रही है वो लिबरलिज्म जो हमारे अंदर घुसा हुआ है, या लिबरलिज्म के भेस में जो लोग हमारे अंदर घुसे हुए हैं, वो प्रॉब्लम है. आवाम में तो इतना वो है जज्बा, वो अपना फेस कर रहे हैं जो भी हालात है, उसकी हमको कोई शिकायत नहीं है, हम यहाँ पे जो भी है. लेकिन ये आपसे जो एक्सपेक्टेशन हमारी है कि लिबरलिज्म के खिलाफ जो आप उठे हुए हैं, आलम बुलंद किए हैं, उससे हमको कम से कम, मुझको तो बड़ी वो मिल रही है, एनर्जी मिल रही है उससे. तो इस बारे में वो साइलेंट भाई मेरा ख्याल कह रहे थे कि हम लिबरलिज्म का वो करने के लिए क्या करें, मतलब और क्या अवेयरनेस के लिए क्या करें हम लोगों में. हम तो बहरहाल अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं कैदर भाई जी. देखिए, हर मुल्क के अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं, सोशल डायनामिक्स होते हैं. आगे भी एक भाई ने कहा कि हम पाकिस्तान में शहरी निज़ाम चाहते हैं, वेराज इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म चाहता है. तो उनको भी मैं यही बात कह रहा था कि देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी होती है. पाकिस्तान बना था इस नजरिए के साथ बना था कि ये एक इस्लामी मुल्क होगा, वेराज इंडिया इस नजरिए के साथ अलग हुआ था कि वो एक सेकुलर मुल्क बनेगा. तो हम जिसे आइन कहते हैं इंडिया में, उसको संविधान कहते हैं, उसमें बातें क्लियरली लिखी हुई हैं. तो दोनों मुल्कों के लोग, एटलीस्ट जो मुस्लिम्स हैं, वो अपने उस मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्टिव करने के लिए जंग कर रहे हैं, पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं. जंग से मतलब ये. तो इंडिया में जो मैं समझता हूं कि जो इंडिया का लिबरल है वो अगर सेकुलरिज्म की तरफ जाता है, या वहां का मुसलमान कहता है कि अगर स्टेट इसको सेकुलर होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात है. मुसलमान के लिए मैं जरूर कहूंगा कि मुसलमान को अपनी जाती जिंदगी में लिबरल नहीं होना चाहिए. लिबरल जो प्रेडोमिनेंट जो आइडिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए कि कुरान ने ये फैसला दिया हुआ है, रूलिंग है ये, कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी चीज के बारे में फैसला कर दें, लेजिस्लेट कर दें, तो किसी मोमन मर्द और मोमन औरत को ये हक नहीं है कि उसने अपने डिस्क्रेशन को, अपनी स्वाबदीद को इस्तेमाल करे. तो हमारा तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो समझ ना आता कि हम सुनते हैं, एताद करते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. लेकिन कलेक्टिव लेवल पे मेरा ख्याल है कि जो इंडिया का जो सेकुलर आउटलुक है वो मेंटेन रहनी चाहिए, इसलिए कि यही नेचर थी उस मुल्क की और वो मेंटेन रहनी चाहिए. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए. अच्छा, मेरे पास एक स्पीकर हैं, बोकरात, आई थिंक आपने लिखा है बुकरा, आई डोंट नो अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ. एनीवे, मैं स्पीकर आपको, माइक आपको मैं देता हूँ. वेलकम ऑन बोर्ड. व्हाट डू यू हैव टू से? एंड आई थिंक ये लास्ट स्पीकर हम लेंगे, उसके बाद फिर अब टाइम काफी हो गया, 12:30 हो गया, 2.5 घंटे हो गए हमें बात करते हुए. तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे. जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो खुद को अनम्यूट कीजिएगा. व्हाट डू यू हैव टू से सर? बोकरात जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम जनाब. जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो मुझे देखने को मिलता है, उससे बहुत सारी चीजें
मैं सीखता रहता हूँ डिफरेंट मौके पे। इनफैक्ट जो छोटे छोटे आप क्लिप्स डालते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिबरलिज्म और दूसरे जो मुल्हिदीन हैं इनके हवाले से, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से लिखते रहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन आज स्पेस में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी मायूसी हो रही है आपको सुन करके, माजरत उसके लिए। खुल के जी, वो 2-3 चीजें हैं। एक, जैसे कि आपने शुरू में एक बात कही कि ये आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो बात से ऐसा लगने लग रहा है कि शायद हम इस्लाम को आउटडेटेड समझ रहे हैं। और फिर ये कि ये चीजें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, है ना, कई सारी चीजें थी। बहरहाल वो सब अलग है। हिंदुस्तान के हवाले से मैं चाह रहा था बात करना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में खास तौर से। एक तो ये, मैं आपकी इस बात को रिस्पॉन्ड कर दूं, उसके बाद फिर आप नहीं, क्लियर हो जाए। मैं समझता हूँ कि वो तो खैर आपका टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको फिर कभी कर लेंगे। ये जो हिंदुस्तान के हवाले से था, अगर इस बारे में थोड़ा सा आप मुझे बोलने दें, और फिर अगर आपको मुनासिब लगे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि जिसको हम समझते हैं मुआहदा, वो मुआहदा कभी हुआ ही नहीं था। और अगर मुआहदा हुआ था तो कौन लोग थे जो बैठ करके मुआहदा किए। इस्लाम में जो मुआहदा के शराइत हैं, क्या वो शराइत पूरे हो रहे थे उस मुआहदे में। और फिर ये कि जब मुआहदा होता है तो इस्लामी कानून के मुताबिक मुआहदा कितने साल का होता है, फिर मुआहदा के टूटने के कुछ शराइत होते हैं, तो वो कैसा मुआहदा है जो यानी बार बार जो है मुआहदे के जो अहद पाबंद थे उसको तोड़ा जा रहा है और वो मुआहदा टूट नहीं रहा है। तो ये पता नहीं मुआहदा अंबुजा सीमेंट से बना है या किस चीज से, कि क्या चल रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ आमतौर से लोग ये समझते हैं कि बहुत बेहतरीन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत ज्यादा अदम मसावत और तमाम चीजें हैं, जबकि ऐसा है नहीं आमतौर से। और अगर आपको याद हो तो 2020 में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, CNRC प्रोटेस्ट, जिसमें एक हमारे साइड में एक स्कॉलर है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले दिन से फासिस्ट था और वो इस फासिज्म की इजाजत देता था, बल्कि उसने ही ऐसा ग्राउंड क्रिएट किया था जिससे जो है फासिज्म हो और तमाम तरह की डिक्टेटरशिप हो। और वो डे 1 से मुसलमानों के खिलाफ था। फिर ये कि मुसलमानों के खिलाफ होने के हवाले से अगर आप देखें तो काउ प्रोटेक्शन एक्ट है बाज़ाब्ता से, और उसी काउ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से आज अगर कोई मुसलमान को उस पर इल्जाम लगा करके उसके घर में क्या बना है या क्या नहीं है, उसको मारा पीटा जाता है, तो बाज दफा उसका जो है कत्ल कर दिया जाता है और उनके ही लोगों पे फिर FIR भी होता है, यानी कत्ल करने वाला बच जाता है। उसकी वजह यह है काउ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर उस तरीके से प्रेसिडेंट रूल का जो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, फिर इलेक्शन का जो तरीका है, फिर जो हिंदू का डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस तरह के और भी कई सारे कानून हैं जो मतलब इतना वाज़े है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, खास तौर से कि वो जो है प्योरली एंटी मुस्लिम है। तो चूंकि चीजों को हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से बाहर से हम ये समझते हैं कि नहीं ये बड़ा सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये डे 1 से बहुत खतरनाक रहा है और उसका असर अब जाकर के हमें बहुत अच्छे से दिखना शुरू हुआ है। क्योंकि कांग्रेस बड़े ढके छुपे तरीके से बहुत बुरी तरह से मुसलमानों को मारती थी। बीजेपी के साथ मसला ये है कि ये ओपनली करते हैं, क्योंकि इनके साथ एक मजबूरी है। अगर ये ओपनली नहीं करेंगे तो फिर इनका जो अपना मेन जो कोर वोट बैंक है वो इनसे नाराज हो जाएगा। और उसी नाराजगी का एक चेहरा आप देखते हैं जब मोदी जी अगर ईद के मौके पे विश कर दें या फिर पाकिस्तान को किसी मौके पे विश कर दें, तो फिर उनके सपोर्टर उनको कमेंट में गालियां लिख रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपकी बात मैंने सुन ली। इस पे ऐसा है कि मैं कभी मुफ्ती यासर साहब को मैं जहमत दूंगा कि वो आए, बल्कि हम स्पेस करते हैं। मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं इस पे तबसरा करूं गिवन द फैक्ट कि वहाँ पे मैंने इसको फेस नहीं करना है अगर कोई ऐसे रिपरकशंस अगर सामने आते हैं। तो जहाँ तक मुआहदे वाली बात है, उसकी टेक्निकल डिटेल क्या है, आई थिंक लास्ट टाइम भी एक इंडिया के साहब आए थे, उनको मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से उनसे बातें हुई थी और मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन किया था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे वो क्या थी, किस तरह से उसको हम क्यों उसको हम मुआहदा कहते हैं और क्यों हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहरहाल बेहतर यह है कि मैं इस पर कभी मुफ्ती साहब को मैं जहमत दूं, आप भी तशरीफ लाएं कि उस पर हम एक अच्छे तरीके से हम बात कर सकें। इससे पहले जो आपने एक बात कही कि मेरी बातें सुन के आपको थोड़ी सी मायूसी हुई कि मैंने कहा आप किस दौर में रहते हैं और कैसे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक रास्ता है और एक मंजिल है। मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं
जवानी मैंने जहाँ पे गुजारी है वहाँ पे मैं देख के मुझे अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग इट, कि मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो दीन को कोई रिग्रेसिव या पुरानी चीज़ समझते हैं, रुजत पसंद कहते हैं और अपने आप को फैशनेबल बनाने के लिए किसी और तरफ चल पड़ते हैं। मैं इस सोच पे मैं लानत भेजता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरा दीन जैसा है वो वैसा है। जिसको अच्छा लगता है उसके लिए भी ऐसा है, जिसके नहीं अच्छा लगता उसके लिए भी ऐसा है। पाकिस्तान में हमारी मंजिल है कि यहाँ पे शरीयत नाफिज हो। बात उसके रास्ते की है। जब मैं कहता हूँ कि आप किस ज़माने में रह रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका आइडिया आज के ज़माने में ठीक नहीं है। ये जो खरूज का रास्ता है, ये जो कत्लो खून का रास्ता है, ये तरीका ठीक नहीं है। इट विल नॉट बेयर एनी फ्रूट्स व्हाटसोएवर। किसी ज़माने में उम्मत मुतहम्मल हो सकती थी इस तरह का काम करने की, लेकिन मुसलमान को अप टू डेट होना चाहिए अपने हालात के साथ। और यही अल्लाह ताला का भी तरीक़ाकार है कि जो जादू फ़िरौन के लोगों के पास था, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उससे बेहतर सलाहियत दी कि उसको काउंटर कर सके। हालांकि वो दुआ भी कर सकते थे कि इनको ख़त्म कर दे इलाही, इनके सांपों को, वो बात ख़त्म हो जाती। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ताकत दी हुई थी वो उनके ज़माने के जो साहिर थे, उनके ज़माने के जो लोग थे, उनसे बेहतर दी हुई थी। कुरान का जो एजाज है, जो इसका जो तरीक़ाकार है, ये जब उस ज़माने में शायरी बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ करती थी, तो कुरान को एक ऐसे मोड में नाज़िल किया गया कि जो प्रोज भी खालिस्तन नहीं है और पोइट्री भी खालिस्तन नहीं है, लेकिन इसका जो रिदमिक बैलेंस है, इसका जो सिमेट्री है, अनबिलीवेबल कि वो उसलूब इसका ऐसा रखा कि उन लोगों के ज़माने के लोगों को हैरान, कि जो जिस ज़माने का वो नॉलेज है उस ज़माने के लोगों को वो मुतासर करे। ये मुसलमान की खूबी है, मुसलमान के पास ये चीज़ होनी चाहिए। हमें इस ज़माने में हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको सामने देख के हमने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। मेरी जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है कि मेरे नज़दीक वो रास्ता ये है कि हमें डेमोक्रेटिकली ही चलना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए हम मुल्क में शरीयत लेके आ सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं फिर से मैं रिपीट करूँगा कि मेरे लिए दीन सबसे अहम चीज़, मेरे लिए दीन है। किसी को ये रुजत पसंद लगता है, मुझसे आके बात करे, हम टेस्ट करेंगे, हम जज करेंगे इनकी मॉडर्निटी को, दीन को बुनियाद बना के करेंगे। हमें कोई किसी चीज़ में ना शर्मिंदगी है, ना हमें किसी चीज़ में हमें कोई है कि नहीं फलां चीज़ छुपा दो और ये करो। है जी हमारा दीन, इट इज़, वी टेक द ओनरशिप ऑफ इट। लेकिन शरीयत को इंस्टॉल करने का तरीका जो मैंने बताया है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, जो मैंने दुनिया में देखा है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर। एनीवे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और छोटा सा लाइन रह गया था, अगर आप इजाजत दें तो। जी फरमाइए। जी, वो जो बात आपने कही थी कि जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का अभी जो एक रंग रूप है उसी में रहें, और मतलब अगर वो यानी अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो पूरी तरह से, वो मेरा एक जनरल कमेंट है, कलाकलामी की बहुत मालूम, तो मेरा जनरल कमेंट है। मैंने जो आगे अर्ज किया ना कि इस पे हम बात कर सकते हैं, बट लेट मी मैं उसमें एक चीज मैं ये बस कहना चाह रहा था कि मतलब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि क्या दुनिया में किसी भी खित्ते में मुसलमान के लिए ये बात मतलब इस्लामिकली ये अलाउड है कि वो जो है आधा ही इस्लाम को फॉलो करे और आधा इस्लाम को फॉलो करने से उसका दीन मुकम्मल होगा। अब जैसे सपोज करें कि हमारे यहाँ जो है क्रिमिनल लॉज भी हैं कुरान के अंदर, और हम ये कहें कि नहीं हम चूंकि ऐसी जगह पे रह रही है जहां हमारे ऊपर ये नाफिज ना किया जाए, और फिर ये कि हम उस पर इक्तफा भी कर लें कि चलो ठीक है हम इतना ही कबूल करेंगे, तो क्या ये काफी होगा एक मुसलमान के लिए? ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात या परेशानियां हो सकती हैं, वहां पे मतलब कई तरह का मसला हो जो वो पूरी तरह से इस्लाम इम्प्लीमेंट ना करें, बट मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए भी ये नाकाफी है, क्योंकि अगर पूरी तरह से इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं है तो उन लोगों के ऊपर ये उनके आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से इस्लाम इम्प्लीमेंट करें। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो है आधे इस्लाम पे इक्तिफा नहीं करना है, बल्कि उसके लिए एक स्ट्रगल उनको करते रहना है। जज़ाकल्लाह। स्ट्रगल की बात उस हद तक ठीक है, फेयर इनफ, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन अगेन आपने जो प्रेमिस रखी है कि क्या ये मुमकिन है कि मुसलमान किसी चीज़ पे अमल करे या ना करे, एब्सोल्युटली बिल्कुल है। यही वजह कि इस्लाम के अंदर आइडियोलॉजिकल डिवीजन रखी गई हैं। जो दारुल अमन के अहकाम है वो दारुल हरब में नहीं है,
आपकी मजबूरियां आपके सामने रखी जाती हैं कि कौन सा काम आप कर सकते हैं